Ready? Well, students, we have already gone through the theoretical part of the ECG. And prior to it, I told you that for the purpose to complete the investigative procedure in regard to cardiovascular diseases, we have to undertake certain investigations, and those all investigations are basically classified into two groups: the simple and the complex. Here we see the investigation. The simple means non-invasive. What do you mean by invasive? Invasive means the procedure under which certain chemical substance is introduced inside the body as a dye for the purpose to complete the contrast. Where contrast is required, dye is applied, and when dye is applied, the procedure becomes complex. Because when we introduce the dye inside the body, it may produce certain untoward effect upon the body, whatsoever be the either slight or major, but it may produce. On this basis, we have divided under two groups, the simple and complex. Simple means only instrument is used and no any dye is applied. In this group, the three investigative procedures like electrocardiography, echocardiography and radiography, these three are the common. Among them is electrocardiography. It is believed that in regard to the diagnosis of cardiac diseases, about 80% of the lesions can be detected with the help of this electrocardiography. It means it is the most common and most extensively used instrument in the cardiovascular disease therapy. Here, what we think about the electrocardiography, it has already been discussed earlier. I think it is unnecessary to repeat. We simply mean here that the electrical impulse produced inside the body through the special junctional tissue like SA node, AV node, bundle of Wills and Purkinje fiber, it passes in a manner and that produces certain effects. The manner like this. The diagram visualizes that pattern of specific or special junctional tissue, and among them, this one is the SA node, which is situated at the junction of the superior vena cava with the right atrium, and this SA node communicates with this one AV node through its three tract, the anterior internodal tract, middle internodal tract and posterior internodal tract. In this way, the impulse generated at this SA node, which is at the rate of 70 to 80 per minute, it passes up to this AV node. This AV node itself produces some impulses at the rate of 60 per minute, and further this bundle of Wills about 40 per minute, and after passing up to this bundle branch, the right bundle, a left bundle branch, and this one is the right bundle branch. Finally, it distributes here in the muscle fiber with the help of these fibers known as Purkinje fiber. Now, the electrical impulses
generating at the spatial junctional tissue and passing accordingly throughout the substance of the heart. It produces the normal functional quality of the heart, and that passage of electrical current is monitored with the help of this ECG. That's why ECG is one of the most competent instrument for the purpose to detect any abnormality occurring inside the heart. Now, further if we probe into the procedure of the ECG, we take 12 leads under its normal performance, and those 12 leads prior to going into the description of the ECG itself in detail, one thing I would like to conclude that like these three procedures, the complex procedure includes the cardiac catheterization, that is called angiography. Next is the nuclear scanning, computed tomography, that is CT scan, computed tomographic scanning, magnetic resonance imaging, MRI. These all are further more sophisticated procedure, but they are complex procedure because they require some dye for producing the contrast, and dye when it produced inside the body is produced more or less complexity. Now we shall further consider the ECG. That total ECG is completed in the consideration of 12 leads. These 12 leads are electrocardiographic leads, the specific arrangement under which cardiography is made between two parts of the body. Each pair of connection is designated as lead. Like these are standard limb lead or bipolar lead, augmented unipolar lead, and the chest lead. Standard limb lead, it means when two parts of the body is electrically connected, like the right hand and left hand, the right hand and left leg, the left leg and right leg, and in this way bipolar limb lead is taken. And again, when we want to augment, enhance the interpretation of the lead, as through stethoscope we enhance the sound occurring inside the chest to sufficient level so that it can become audible and it can be detected. Likewise, here augmented limb lead, where the two leads are joined together to augment, enhance, and one is used as explorer. And in this way we take the AVL, AVR and AVL. And again, the chest lead, there are 6 leads which is taken on the surface of the chest like this. Here, standard limb lead, augmented unicoral and chest lead. For standard limb lead, right arm, left arm, right leg and left leg are used. Here one thing is changed, the instrument which is present in your college, that the color differs. Color differs in which sense?
the white has been changed into yellow. Now this instrument shows the red, yellow, green and black. Here this description is of the common and lower level electrocardiographic instrument. But with this slight change, you can easily comprehend it. Now, for bipolar limb lead, here the lead are used positive in the left arm and negative in the right arm, like this. Here we are only representing the heart, so heart is prepared so in that the whole body involving. I mean to show you here that one connection is done here in the left arm at the level of the radial artery. It is to know that the electrical current connections are made at the place where the surface is quite closer to the blood, passing blood, so that the electrical current may be very easily received by the instrument. Here, this part is so superficial that the radial artery is only covered by the superficial fascia, deep fascia and skin, and nothing other any structure overlapping this. So, the better current fluctuation may take place here, and likewise everywhere. Now, in this way, left arm and right arm for lead to left leg. Now the positive is here. Positive is added here in the left leg and negative and negative in the right arm. In this way we can take lead 2 and lead 3 when the one electrode is placed, the positive is placed in the left leg and negative is placed in the left arm. It is this arrangement persists for the augmented limb lead also. Now the new type of arrangement required here in the unipolar limb lead. AVR is taken by joining the left arm and left leg to the positive and right arm to the negative, and likewise AVL right arm left leg and left arm is explorer. AVF right and left are conjoined and left leg is explorer. Here, this one is the more important, which required to be conceived very skillfully. These are the sites shown here for placement of the electrodes of the chest. Now these are the sites where chest leads are used. Here, this is the site of V1 and this one is the site of V2. Now you can very easily imagine this is the first, second, third, fourth and fifth rib, and in between these ribs, this is the first intercostal space, second, third and fourth intercostal space. Now for V1, 1 inch right to right, 1 inch right to the sternum in fourth intercostal space is the place for V1, and at the same level in the left side is the place for V2. In the fifth intercostal space,
where the ventricular line passes and crosses the fifth intercostal space, half inch inside, where is the site of the apex of the heart. This site is selected for V4, and now the place in between V2 and V4 is selected for V3. Again, fifth intercostal space is extended up to the level of the anterior axillary line, where this anterior axillary line crosses the fifth intercostal space. It is the site for V5, and where the mid axillary line crosses the fifth intercostal space, it is the site for the V6. Now, in this way, we shall further use it practically, how we read here, and for that purpose, we shall proceed to our land. इसके ऊपर देवी और लगा करके इसको ये लगा दिए हैं, ये लिम्ब एडप्ट हो गया ये। अब इसके बाद ये जो हम बताए थे चेस्ट के इलाके को कैसे हम लोग देखते हैं, चेस्ट के इलाके को जैसे एक चीज देखो, सब पे देख रहा है ना, तुम देख रही हो ऐसी हो के वो यहाँ आ गया। अरे बस सब जगह सुविधा मिलती है, बड़ा नहीं पा रही असल खाली छोटी ही नहीं है, मोटी भी है। तो ये जो है यहाँ पर कल हम लोग इस बात की चर्चा किए थे कि ये चेस्ट लीड जो लगाया जाएगा, तो चेस्ट का जो है वो लगाने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं जगह कौन सा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, अब ये देखो इंटरकोस्टल स्पेस को कैसे हम सबको देखेगा, कैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से अगर जो देखो ये जगह जो है अपने बॉडी में फील करो, यहाँ पे ये जहाँ पे वो एंगल ऑफ लुइस है, एंगल ऑफ लुइस जो है वहाँ पर क्या उसके ऊपर फर्स्ट रिब होता है, और सेकेंड रिब जो होता है वो मैनुब्रियम के लोअर पोर्शन का हाफ और बॉडी का हाफ, मैंने बॉडी का अपर हाफ और मैनुब्रियम का लोअर हाफ मिल के वो इस तरह का वो कर्व बनाता है, और उसी कर्व में सेकेंड रिब रहता है ना। तो यानी कि मैनुब्रियम स्टर्नी के लेवल से ऊपर तक इस जगह पे जो होगा, यहाँ जो देखेंगे ये एक रिब ये है, एक ये है, एक रिब ऊपर एक रिब नीचे, इसके बीच में जो जगह खाली होगी यहाँ सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये जो है ये फोर्थ हो गया। सीधी बात ऐसे भी है, ऊपर से अगर नापो तो तकरीबन एक इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो 1 इंच का करीब करीब होता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये इस जगह को अब हम देखते हैं क्या कि ये स्टर्नम जो है इसके 1 इंच राइट साइड में 1 इंच राइट, ये मुख से सत्वन आए छोड़, अरे अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये जो है, ये जो यहाँ जो हम जो सिलेक्ट किए वो सिलेक्ट किए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम से 1 इंच राइट और 1 इंच लेफ्ट, 1 इंच राइट V1 की जगह है और 1 इंच लेफ्ट V2 की जगह है। आप उसके बाद जो देखेंगे ठंड लग गई है, हाँ तो छोड़ तो सीट तू छोड़ो उसको, अब उसके बाद ये हम बताए थे, ये ऐसे यहाँ अगर आता है, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है,
ऐसे भी हम लोग सीधे यहाँ पे उंगली रखते हैं कि यहाँ फिक्स है, ऐसे अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ फिक्स कर दिए इसको। ये जगह जो ये जो हो गया, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया कहाँ, ये क्लेविकुलर लाइन से हाफ इंच इनसाइड इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज द पोजीशन ऑफ अपेक्स। ये जगह हो गया V4। अब यहाँ V3 और ये V2 और V4 के बीच के जगह को हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, इस जगह पे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये जो है V3 की जगह है। क्या सब कुछ समझ रहे हो ना? इसके बाद अगर देखें तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये जो था मिड क्लेविकुलर लाइन से हाफ इंच अंदर जो था, ये तो था ये V4 की जगह, ये है यहाँ पे ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, यहाँ जहाँ पे आके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को काट रहा है, ये जगह है V5 की जगह। और जिस जगह पे ये मिड एक्सिलरी लाइन जो है वो आकर के जहाँ पे काटेगा ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को, वो होगा V6। अब यहाँ पे अब यहाँ ऐसे भी देखेंगे ना, यहाँ पर C1 लिखा हुआ है, मैंने चेस्ट इलेक्ट्रोड है 1, तो C1 या इसको हम ऐसे दबाते हैं और यहाँ लगाते हैं, पकड़ लिया। ये तो बहुत बचपन से काम को करते आए हो, आईना पर चिपकाते हो ना। तो 1 ये हो गया, तो ये 2 हो गया, चिपक गया, बीच में ना खोल देगा, जिस समय वहाँ होता रहेगा उसमें धीरे धीरे फुट से गिर जाएगा ये, क्या के बाद उसके नीचे में उसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 3, अब उसके बाद ये जो है ये 5 हो गया और ये 6 है, आप खुल जाएगा। ये करना होगा ना, है नहीं, जेल से क्या होगा, यहाँ पर बाल जो है वो ना उसको मैंने वैक्यूम को खत्म कर रहा है, ये जो हेयर है ना वो वैक्यूम खत्म कर, ऐसे करने के लिए होता है कि पहले सेव कर दिया जाए, और सेव करने के बाद तब सोचे कि सेव कर देंगे तो बिना मतलब का तू तो 4 दिन पूछेगा क्या हुआ था, भी तो कुछ जाता है। हो गया, अब सब लगा हुआ है ना, ठीक है। इस रूप में टोटल जो है हम लोगों ने इसको ये लगा दिया। अब लगा करके ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट का देखो, इसका जो कीबोर्ड जो देख रहे हैं, इसका ये कीबोर्ड में जनरली ये सारा जो बोर्ड है ये जो है ये पावर ऑन करने अंदर में, ये तो इसको मेन पावर तो मिला हुआ था, ये जो है ये पावर इसका जब ऑन करे होगा तो देखो ये जल गया, ये साबित कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें पावर ऑन है। छोड़ दो ना, बाद में उसको लगा देंगे। अब ये जो ऑन जो हो गया, अब यहाँ पर इस काम को पेशेंट के लिए किया जाता है तो यहाँ पे उसका डिटेल नेम वगैरह इसमें डाला जाता है, तो उसको अभी छोड़ते हैं। पेशेंट तो नोन है, भागेगा नहीं ना जी, पैसा नहीं दिया हो बाबू, हाँ फिर उसको मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे फिर। तो जानते हो ना वो नाविक लोग क्या करता है, वह बैठा लेता है आराम से, और जब बीच गंगा जी में जाता है तो कहता है कि पैसा दो। कोई अगर बदमाश क्या बोलेगी तो पैसा देके दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम कूद जाएंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, हम कूद जाएंगे, फिर आप समझिएगा आपका क्या होता, समझे ना, हम कूद जाएंगे भैया 100 रुपये तो।
अब यहाँ पे ये जो और सब तो ये बहुत सारे इसके अपने फंक्शन अभी फिर जानने के लिए वो नया है वो क्लास चलेगा। सिंपल इसका इतना ही है कि ऑन हो गया है ना। अब यहाँ से हम इसको प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट का ये बटन है। वहाँ लगा हुआ है, वो लगा खुला हुआ है, लगा हुआ है ना, ठीक है। ये देखो ये चालू हो गया और सही लगा हुआ है, उसकी ये पहचान है ना। अगर सही नहीं लगा हुआ रहता तो ये ग्राफ जो बनता वो टेढ़ा कोड़ा बनता। और अब हम इसको कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसमें बता देता है, कोई प्रॉब्लम रहता है तो इसमें अब ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इस ग्राफ को देख और देख के समझो कि क्या हुआ है। क्या स्थिति समझ गए? इसका पढ़ना और समझना ही बहुत था। करने के लिए तो कहते हैं कि सुनीलों को सब सेट करके दे दे, करके कर दो, सब जगह लगा वो करके और अपना वो बंद कर देगा और प्रिंट निकल जाएगा। अब ये प्रिंट निकला, इसमें क्या है? ये सिर्फ जो ये इतना आया, इतना नहीं, ये इतना, ये सिर्फ इतना जो आया, ये 75,000 की मशीन का है ना। और ये जो इतना जो आएगा ये 2,75,000। इसके अंदर में पहली बात तो अब एक काम करते हैं, इसको कहा चल इसको निकाल लो, तो इसको चल बोलो बोल निकालो इसको, करके इसको रखा जाए। तो हम तो इसको 12 वर्ष से रखे हुए हैं, कम से कम अभी 25-30 वर्ष और अभी चलेगा। अगर मेरे हाथ में रहा, मेरे जैसे व्यक्ति के हाथ में, हाँ नहीं तो वो 2 महीना काफ़ी है। एक बार थोड़ा सा मुड़ गया बस गया, एक और फूट गया पूरा टूट गया। तो अब यहाँ ये जो निकला तो अरे आज तो आया था वो पेशेंट, लेकिन तो आज पैसे नहीं लेके आया था, कहा कि सर परसों कराएंगे। यहाँ ये जो है इसके अंदर में अब हम जो देखें तो ये जो बताए थे ये तुम लोगों को ऐसे समझ में आवे, 1 2 3 दिख रहा है यहाँ से ऐसे। यस सर। आगे बढ़ाओ लोगों को, खोलो नहीं, अभी ऐसे हम बता दे रहे हैं। ये देखो ये ऐसे इतना सिर्फ देखो, सब प्रत्येक बेंच पे देखो ऐसे, मैंने वो 1 2 और 3 दिखाओ सबको। अरे तो वैसे एक एक करके समूचे एक बार लेना। हाँ धीरे धीरे बढ़ाते चलो, सिर्फ उतना ही खोलो नहीं। एक मैंने ये 1 2 3 जो इंगित हो रहा है रोमन का बड़ा होगा, ये जो रोमन का जो बड़ा होगा 1 2 3 ये जो दिख रहा है ये जो है 1 2 3 है,
ये 1 2 3 ये देखो यहाँ से 1 2 3 ये जो है 1 2 3 ठीक है, ये रोमन का बड़ा 1 2 3 ये सिंपल 1 2 3। इसके बाद एक जो यहाँ जो देख रहे हैं ये नीचे में जो है, ये नीचे एक जो V2 दिख रहा है, यस सर नीचे में है ना, सब पे देखे वो V2 दिख रहा है नीचे में, है ना, ये V2 ये है ना, ये जो V2 जो नीचे में है ये, इसका मतलब अब क्या हुआ, 1 2 3 तो था, ये 1 2 3 जो है ये कहलाता है बाइपोलर लिंब लीड, है ना, ये बाइपोलर लिंब लीड, ये जो हम दाहिना हाथ और बायां हाथ में जो लगाए थे तो वह अंदर में अपने आप चेंज हो गया, चेंजर उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है कि एक बार तो इसमें पॉजिटिव था, अगली बार नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे करके एक लीड हो गया, दूसरा लीड हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तीसरा हो गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये 3 जो लीड हो गया, दोनों लिंब को बाइपोलर 2 पोल वाला लिंब का लीड बने, लिंब से इलेक्ट्रिकल करंट को हमने मॉनिटर किया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, अब ये देखो ये देखो AVR AVL और AVF है लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखो ये AVR AVL और AVF, ये इतना जो था यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ जो था ये बाइपोलर का ग्राफ था यहाँ तक, और अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल रहा है ये AVR AVL और AVF दिख रहा है ना, ये AVR AVL और AVF ये सर यूट्यूब पे ठीक है, ये देखिए ये AVR है ना, AVR AVL और AVF लिखा, ये जो है ये ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिंब लीड है, ऑगमेंटेड मीन्स इनहांस, बढ़ाया हुआ, जैसे एम्पलीफायर होता है ना, यस सर कि आवाज को तेज कराने के लिए होता है, वैसे ही इसके वोल्टेज को तेज कराने के लिए देख रहे हो, जितना स्पष्ट इसके अंदर में ग्राफ आया है, जितना स्पष्ट इसकी प्रिंट है, इतना बढ़िया प्रिंट सामान्यतः वो ECG के मशीन में नहीं आता है, बहुत सारे में प्रिंट आता है कि दिखाई ही नहीं पड़ता कि ग्राफ किधर बना है, कभी देखोगे ये लगेगा ही नहीं कि ग्राफ बना हुआ है, तो ये जो प्रिंट स्पष्ट है, अब ये तो अब हर जगह तो तुमको ये मशीन तो मिलेगी नहीं, इसलिए तुमको अब इसके आधार पे बाकी को अनुमान कर लगाना होगा कि ऐसा ही होगा वो, है ना, ये इस तरह का जो मशीन रहेगा ये और टेक्निकली आपकी जिसे ऐसे बाहर रखेगा इतना में 3 इंस्ट्रूमेंट करेंगे, है ना, है। तो ये जो है ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिंब लीड, मतलब एक ठो को बना दिया वन एक्सप्लोरर, R को L को या F को और 2 को एक जगह डंप कर दिया। अब उसके बाद ये जो हम लगाए थे V1 V2 ये चेस्ट लीड है, ये V1 V2 में देख रहे हैं या V3 V4 देख रहे हैं, चेस्ट लीड ये है ना, V1 V2 V3 V4 ये B6 तक का आ गया, B5 ये B6 के बाद अब ये जो है ये प्रत्येक लीड को अलग अलग करके दिखाया है ना, ये तो सब एक साथ था, ये जो है प्रत्येक लीड जो है ना अलग अलग, देखो वो 1 2 3 AVL AVR मैंने AVF है ना, ये प्रत्येक लीड अलग अलग है, ये देखो ये जो है ये प्रत्येक लीड इसमें अलग अलग किया हुआ है ना, ये एक लीड का अलग, प्रत्येक को काट काट के अलग कर दिया गया है, देख रहे हैं, प्रत्येक को अलग किया गया है, बाहर लीड अलग अलग है, ये है ना, ये जो रूप में ये दिखाने का मतलब क्या हुआ,
एक लीड को इसके अंदर में अगर मिला हुआ है, अब मिला हुआ में थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि ये जो है क्लास है अभी कोई है? कौन का क्लास है? नहीं होगा क्लास। यहाँ मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो था, मान लो कि ये जो ऐसे करके जो चल रहा है, तो ये चल रहा है, तो मान लो कि एक कार्डियक साइकिल यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ से यहाँ जो जुड़ा, इसके अंदर में कोई कंफ्यूजन अगर जो रह जाए तो उसके लिए ये है कि ये अलग अलग उसको, ये एक लीड में क्या ग्राफ है एक लीड का, ये जो बना के दिया गया है अलग अलग, ये इसी के लिए दिया गया है। अभी देख चुके हो तुम लोग एक लीड में, तो इंडिविजुअल लीड के बने पूरी तरह से तुम्हारा कंसेप्शन एकदम क्लियर हो जाए। इस ग्राफ का ये मतलब। अब इतना पर से अब तुमसे पूछने वाली बात ये रहेगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और जब तुम नहीं बता पाओगे तो हमरे बताने वाली बात ये रहेगी कि देखो ये सब है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, दिख रहा है? ये जो है यहाँ पे, ये जो है दिखा रहे है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, सीधे बात हम समझाएंगे इसको। यहाँ पर कहने का मतलब देख रहा हूँ फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, नहीं फिगर भाई, हाँ यहाँ पर फिगर है, ठीक है, ये यहाँ पर तो फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिगर है और ये कंक्लूजन है। तो ये जो है, ये कहने का मतलब इसमें हुआ कि अब ऊपर जो खाली था उसमें हम लिखते कि आईडी, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कितना है, उसके बाद उसका नाम लिखते, सेक्स लिखते, एज लिखते, हाइट, वेट, वो ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, इतना डिटेल तो ऊपर में जो खाली रह गया है वो है। इसके बाद नीचे है देखो HR, हार्ट रेट, हार्ट रेट में लिखा BPM, BPM का मतलब बीट पर मिनट। इतना बार बता चुके हैं कि BPM शो करता है बीट पर मिनट, यानी 68 अगर है मीन्स 68 बीट पर मिनट, तो ये 68 बीट पर मिनट इसमें तो लिख दिया है। यही सवाल हम पूछे थे उसमें कि 118 BPM लिखा हुआ है, तुम बताओ कि 118 सही है कि नहीं, अगर सही है तो कैसे पूछे थे ना, उसका जवाब तो बताए थे ना हम, किस आधार पर उसको देखते थे, नहीं समझे थे क्या हुआ उसमें, उस समय समझ नहीं आया था, तो हम जो क्लास ले रहे उसमें जो अति कर रहे थे, तो डिस्क्राइब कर रहे थे, तो जो लोग उसमें थे भाग लिए थे उन लोगों से पूछ रहे हैं क्या जी बोलो, ये नहीं बताए थे, डिस्टेंस भी बताए 128, इसको साइनस ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया क्यों कहा गया है, पहला ऑब्जर्वेशन वही ना था। यस साइनस टेकिकार्डिया, तो टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है हार्ट बीट बढ़ जाता है कितना, 100 से पार। When the heartbeat exceeds more than 100 per minute, the condition is known as ब्रेडिकार्डिया। तो वो 118 था, वो कैसे समझ में आया था कि 118 समझ में आया था कि दो आर वेव के बीच की दूरी बढ़ जाती है, दो आर वेव के बीच में कितना बड़ा वाला वर्ग है। यहाँ देखो ये दो आर वेव है,
इसके बीच में 1 2 3 4 वर्ग है, उसके बाद और भी वो उसमें 3 इसमें 1 है, यानी 4 5 20 4 24 है। इसको किस आधार पर निकालने के लिए बताए थे? इसको 1500 मेथड से निकालने के लिए बताए थे कि ये जैसे ये जो ग्राफ पेपर जो होता है, ग्राफ पेपर जनरली ये जो हुआ, ये जो ग्राफ पेपर है, एक बड़ा वाला ये जो ग्राफ जो है, ये बड़ा वाला ग्राफ ये 25 स्क्वायर मिलीमीटर का है, यानी कि ये जो है 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 स्क्वायर हुआ ना। एक स्क्वायर मिलीमीटर का एक स्क्वायर है। तो ये जो है, अब यहां से अगर एक आर वेव यहां रहे और दूसरा आर वेव अगर यहां रहे तो इसमें का 4 हो जाएगा, ये 5 4 9 5 14 14 और 4 इधर 18, कुल मिला के 18 हो गया। ये 18 से इस 1500 को भाग दे दो। अभी इसमें 24 है, तो 24 से इस 1500 में भागा दे दो ना। तो ये मान लो कि 6, मतलब अगर जो लग गया 6 को 24 4 2 और 14 निवार 2 14, ये जो है ये बच गया यहाँ पर, ये 64 है ना, ये जो बच गया। तो ये वो 24 10 24 ये हाँ हाँ, तो ये अगर 24 रहा तो ये आ जाएगा। अगर जो वो 20 रहा तो 20 से अगर सीधे उसको भागा दो तो 1500 में, यानी जितना रहे, जितना वर्ग बीच में है 1500 में उससे भागा दे दो, जो भागफल आएगा वो पल्स रेट होगा। ठीक है ना, यानी दो कंसेक्यूटिव आर वेव के बीच की दूरी जितना स्क्वायर मिलीमीटर है उससे भागा दे दो 1500 में। ये 1500 मेथड तरीका है ये, तो वो जो है तुमको मिल जाएगा कितना हर्ट रेट क्या है। तो वो इसमें हर्ट रेट है। अब थोड़ा वो जाएगा क्लास खत्म करके, इसको और इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट डे करेंगे, इसको लेकर के आना कल।